exercise 4.3. First sum, find the cube root. Before this, we have done cube. Now we will do cube root. In B part, our number is 343. For finding the cube root, first we will do the prime factorization. In 343, we can see that this number is not divisible by 2 because last digit is 3 here. In divisibility of 3, we will see sum of digits. 3 plus 4, 7 plus 3, 10. 10 is not divisible by 3. It means this number is not divisible by 3 also. Now next number is 5. This number is not divisible by 5 also. Now we take the next number, that is 7. This number is divisible by 7. You can see, you can do divide also side. आप साइड में डिवाइड करके देख सकते हो. 7 4 जा 28. When we will do minus, 6 will come. 3 down. 7 9 जा 63. That is 49. 7 7 जा 49. 7 1 जा 7. 1 आ गया. We will stop. We write the numbers in a product form. 7 multiply 7 multiply 7. Now we can easily see that this is the triplet. आपका ट्रिपलेट बन गया. क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और फिर ट्रिपलेट बनाने हैं. जो आपका ट्रिपलेट बन गया वही नंबर आपका वन टाइम यूज होगा. अब आपका 7 का ट्रिपलेट बना है तो 7 आपका आंसर हो गया. 343 क्यूब रूट इज 7. अगर हम यहाँ एक स्मॉल 3 लिखते हैं और दिस साइन, दिस इज द सिंबल ऑफ क्यूब रूट. क्लियर? In H part, 17,576. First we will do the prime factorization. So 6 is last digit. It means this number is divisible by 2. 2 से divide किया, we get 8,788. Last digit is 8. Again we will do divide with 2. 2 से divide किया, 4,394. 4 is the last digit. Again divide with 2. 2,197. Now 7 is not divisible by 2. This number is not divisible by 3 also. We can check sum of digits. 5 also not divisible. 7 also not divisible. 11 से भी check कर सकते हो. Now we can see that this number is divisible by 13. 13 से divide करो, we can do inside. 13 से divide किया, we get 169. Again we will do divide with 13. We get a 13. 13 ones are 13. We write the number in a product form. Now we make the triplet. आपका 2 का triplet हो गया और 13 का triplet हो गया. We will write one time for finding the cube root. So that will be 2 and that will be 13. Now we will do the multiply. 2 multiply 13 is 26. Now cube root of 17,576 is 26. Question number 2. Find the cube root. Now we have given the number in a multiplication form. A part 45 multiply 75. Now here is two number 45 and 75. Between there is multiplication sign. What we will do? We will do the prime factorization of 45 and prime factorization of 75. दोनों का separate क्या निकालेंगे? Prime factorization. When we will do factorization of 45, we can see that this number is divisible by 3. We get 15. Now 3 5s are 15. 5 is 5. Now when we do the prime factorization of 75, what we will do? First we will take the 3. This number is divisible by 3 because sum of digits is 12. So when we will do divide, we get 25. Now 25 come in table of 5. 5 5s are 25. 5 is 5. We write these number in a product form. First we will write the factorization of 45. 3 multiply 3 multiply 5. Now we will write this number. 3 multiply 5 multiply 5. For finding the cube root, we make the triplets. अब देखिए ट्रिपलेट्स में आपके 3 नंबर होते हैं सेम. आपके 2 तो 3 आए हैं, एक 3 और चाहिए.
वो ये रहा आपका, हो गया 3 का ट्रिपलेट। इसी तरह से 5 का देखो, आपके 2 टाइम्स 5 यहाँ है, 1 टाइम मेरा बन गए 3, तो इट मीन्स आपका ट्रिपलेट किसका बन गया, 3 का और 5 का। व्हेन वी फाइंड द क्यूब रूट वी मेक द ट्रिपलेट्स और वी विल टेक 1 टाइम दिस नंबर, सो 3 है और आपका 5 है, 3 multiply 5 is 15, means cube root of 45 multiply 75 is 15. In a C part, you have given the question in an exponential form, 2 raised to power 6 multiply 3 raised to power 9. It means जो आपका 2 है वो 6 टाइम है और जो आपका 3 है वो 9 टाइम्स है। 2 आपका 6 टाइम है तो we will write 2 6 टाइम, 3 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स। Now we make the triplet for finding the cube root. अब आप देखिए आपका 2 का ट्रिपलेट हो गया, 2 का ट्रिपलेट हो गया, 2 के 2 ट्रिपलेट हो गए। इसी तरह से 3 के ट्रिपलेट बनाओ, 3 ट्रिपलेट बन गए। उन सबको क्या करेंगे, 1 टाइम लेंगे और व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई। देखो आपका 2 हो गया, 2 दिस 3 एंड दिस अगेन 3। नाउ वी विल डू मल्टीप्लाई ऑफ दिस, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 3 जा 108। It means cube root of 2 raised to power 6 multiply 3 raised to power 9 is 108. Question number 3, find the cube root. Now we have given the number in a fraction form. In B part, 512 upon 729, we will find the cube root. Cube root symbol is here. Now what we will do, first we will do the prime factorization of 512. 512 है, we are doing prime factorization, last digit is 2, so this number is divisible by 2, 2 से divide किया we get 257, again last digit 6, again divide with 2, 2 से divide किया 128, again divide with 2, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, divide with 2 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. That is the factorization of 512. Now next number is 729. 729 we will do the prime factorization. We see that this number is not divisible by 2. This number is divisible by 3. So we will start from 3. 3 से डिवाइड किया 243, 3 से डिवाइड किया 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 81 डिवाइड विद 3 we get 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3. Okay, now we will write these, we will find the cube root of 512 or cube root of 729 और we will write in a fraction form. सेम ऐसे ही लिखेंगे, पहले इसका क्यूब रूट और फिर इसका क्यूब रूट, दोनों के आंसर राइट कर देंगे। अब देखिए 512 के जो आपके फैक्टर्स है वी विल राइट इन अ प्रोडक्ट फॉर्म, वी आर मेकिंग द ट्रिपलेट। आपके कितने ट्रिपलेट बने, 3, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इट मींस क्यूब रूट ऑफ 512 is 8. Now we will write the factors of 729. So 3 is here. There are 2 triplets. 3 multiply 3, that is 9. It means cube root of 729 is 9. We will write answer here. Cube root of 512 is 8 or 729 cube root is 9. Finding the cube root by estimation. अभी तक हमने जो क्यूब रूट फाइंड आउट किया है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करके जब हमने क्यूब रूट फाइंड आउट किया है, अब हम एस्टिमेशन यूज करेंगे। हाउ वी विल डू, आपका नंबर है 32,768। वी विल मेक द 2 ग्रुप्स ऑफ दिस नंबर। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसमें हम 3 डिजिट्स लेंगे, जो बच गया वो आपका सेकेंड ग्रुप। 2 ग्रुप्स हो गए। जो आपका फर्स्ट ग्रुप है वी आर टेकिंग हियर 3 डिजिट्स, फिर जो रह जाएंगी डिजिट दैट इज अ सेकेंड ग्रुप। अब हमें इन दोनों ग्रुप से नंबर्स फाइंड आउट करना है कि यहाँ कौन सी डिजिट यूज होगी और यहाँ कौन सी डिजिट यूज होगी। वी कैन सी इजिली दैट कि इन अ यूनिट प्लेस देयर इज अ 8,
लास्ट में 8 है। हमारा 8 किसका क्यूब करने से आ सकता है? 2 का क्यूब करने से आ सकता है, क्योंकि 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा जो यूनिट प्लेस है उस पे डिजिट क्या यूज होगी? 2। अब हमारी फर्स्ट ग्रुप की बात, सेकेंड ग्रुप की बात है, 32 है। 32 हमें देखना है कि किसके क्यूब के बीच में लाई करता है। तो ये हमारा 3 का क्यूब और 4 के क्यूब में लाई करता है, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27 और 4 का क्यूब क्या होता है? 64। अब 27 और 64 के बीच में हमारा नंबर लाई कर रहा है 32, और तो कोई नंबर है नहीं। तो जब हम देखेंगे कि किसके बीच में लाई करता है, तो जो हमारा स्मॉलर नंबर है उसको हम टेंस प्लेस पर लेंगे। टेक द डिजिट ऑफ द स्मॉलर क्यूब, दैट इज 3। तो वो नंबर क्या आ गया हमारा? 3। तो सेकंड ग्रुप के लिए क्या नंबर कंसीडर हुआ? 3, और फर्स्ट ग्रुप के लिए 2। तो द क्यूब रूट ऑफ 32,768 is 32. Question number 4. State the unit digits of the cube root. Means हमें बताना है कि हमें क्यूब नंबर गिवन है, अगर हम उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। हमें क्यूब नंबर गिवन है और हमें क्या बताना है? यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट। जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? हाउ वी विल फाइंड? वी कैन सी हियर लास्ट डिजिट इज 6, यानी कि यूनिट डिजिट इज 6 इन द गिवन क्यूब नंबर। ये हमारा क्यूब नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। तो 6 है, हम जब 6 कैसे आ सकता है? जब हम 6 का ही क्यूब लेंगे। 6 का अगर हम क्यूब लेते हैं तो लास्ट में क्या आना है? 6 आना है यूनिट प्लेस पर। तो इट मींस यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 6, क्योंकि जब 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या बनेगा? 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई विद 6 6 6 जा 36 6 3 जा 18 और 3 216। 6 को अगर हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो लास्ट डिजिट क्या रही? 6 रही। क्लियर? इन बी पार्ट 42,875 सेम वही क्वेश्चन है, आपको क्यूब नंबर गिवन है, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट बतानी है। तो आपके यहाँ यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। तो आपका यूनिट जब क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे तो लास्ट में आपकी कैसे 5 आ सकता है? जब हम 5 का क्यूब लेंगे तो 5 ही आता है, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। तो इट मींस यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट इज 5।